Hello and welcome to the online classes for grade 9. This is in Kids Heaven Public School and we are holding these sessions in order to present the best online teaching methodology for our students. So, my dear grade 9 students, we are continuing our chapter number 8, Reach for the Top, from our book of Beehive. And Reach for the Top has a story about two women who are talented and who got the highest rank in their fields. The first one we read about was Santosh Yadav, and the second one is Maria Sharapova, who was a tennis player and got the highest rank. So we began our solutions of the exercises. Now thinking about language, we are continuing with the writing part today. Now in this writing part, we have a question, a task in fact. Write a short article for your school magazine, comparing and contrasting the players in terms of their duration at the top. Mention some qualities that you think may be responsible for their brief or long stay at the top spot. So dear students, हमें एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्कूल मैगजीन है उसमें अब इसमें हमें क्या लिखना है, इसका जो टॉपिक है इट्स द रोल ऑफ ऑनर ऑफ वीमेन. मतलब कि देखें जो हमारी विमेन है जिन्होंने एक हाई स्टेटस एक मुकाम पाया है टेनिस में, ओके, वी आर कंट्रास्टिंग, हम कंपेयर करेंगे कि कौन से प्लेयर्स थे जो ज़्यादा लंबे समय तक टॉप के स्टेटस पे रहे थे, ठीक है, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 3 हफ्ते के लिए. इस तरह से हमें देखना है. साथ में ही हमें उनकी कुछ क्वालिटीज़ देखनी है जो कि उनको उस मकाम तक ले गए एंड उनको वो मुकाम दिया गया इतने समय तक, ओके. क्वालिटीज़ मतलब उनकी जो बहुत अच्छी बेहतरीन आदतें थी, बातें थी उनमें, किस वजह से वो इतने हाई स्टेटस पे थे, ओके. सो विद दिस नाउ लेट अस सी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर नाउ वी हैव द रोल ऑफ ऑनर ऑफ वीमेन who enjoyed life at the summit since everybody's favorite player Chris Evert took her place in 1975. अब देखिए हमारी जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट मारिया शरापोवा, ओके. इन्होंने कितने टाइम तक समिट पे रही थी? व्हेन वी से समिट इट मीन्स द टॉप, द हाईएस्ट रैंक, ओके. सो नाउ लेट अस सी एन आर्टिकल. द लॉन्ग लिस्ट ऑफ विमेन who topped the tennis arena, okay. Tennis is a sport. Now let us see these women. Different women enjoyed life being at the top for different durations. देखिए काफ़ी सारी औरतें थी, प्लेयर्स थी, ओके, जिन्होंने ये टॉप का जो रैंक है इसे काफ़ी समय तक एंजॉय किया था, मतलब इनका नाम रहा था. फॉर एग्जाम्पल मार्टिना नवराटिलोवा ऑफ द US enjoyed it for 33 weeks. देखें इन्होंने 33 वीक्स तक ये स्टेटस अपना इनके नाम था. इट वॉज मार्टिना हिंजेस ऑफ स्विट्जरलैंड who had it for 209 वीक्स. अब उनके बाद स्विट्जरलैंड की एक प्लेयर थी जिन्होंने 209 हफ्तों तक ये मुकाम अपने नाम पे रखा. एंड देन मोनिका सेलेस ऑफ द US also enjoyed it for 178 weeks. After that, Serena Williams and Lindsay Davenport of the US also remained world number 1 for 57 and 82 weeks respectively. मतलब कि Serena Williams for 57 weeks and Lindsay Davenport for 82 weeks. Okay? अब हम आते हैं जो हमारी कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, मारिया शरापोवा. Okay? So Maria Sharapova of Russia enjoyed this rank for 1 week. इनका कुल 1 हफ्ते तक. अब देखिए क्या मतलब है इस सब ड्यूरेशन का, ये जो 33 वीक्स 178 वीक्स है, इसका मतलब ये है कि जब तक कोई और प्लेयर उनसे ज़्यादा अच्छे स्कोर्स या अच्छे रैंक नहीं हासिल करता, टॉप पर वही रहेंगे, उन्हीं का नाम रहेगा, ओके. सो लाइफ एट द सबमिट ये होता है जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है. अब हमें इनकी क्वालिटीज़ देखनी है. लेट्स लुक एट दीज क्वालिटीज़. All these women worked day and night to achieve the pinnacle. They sharpened their playing skills with determination. They had physical fitness and mental strength, okay, to succeed. अब देखिए determination सबसे important चीज़ होती है किसी भी आप टास्क में. आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, determination is very important. Determination means our self confidence, जो हम
अपने आप से अपने आप एक बात पक्की कर लेते हैं कि हमें ये करना है तो पक्का करना है, ठीक है। एंड उसके लिए देन वी आर रेडी टू फेस एवरीथिंग, we are ready to face we are ready to give sacrifices, we are ready to watch out and come across hurdles, obstacles, distractions। हम सभी चीज़ों को फिर बर्दाश्त करते हैं, challenges face करते हैं, लेकिन अगर determination होता है हमारे अंदर, only then we can succeed। They had physical fitness, obviously sports है तो physical fitness is very important। mental strength, yes, बहुत problems face करनी पड़ती हैं, कोई बातें disturb करती हैं तो हमें एक अपने आप को mentally strong रखना पड़ता है। also they had talent, obviously आप sports खेल रहे हैं तो उन्हें sports में talent था, तभी उनका उसमें नाम आया या वो कुछ कर पाए, उसमें खेल पाए सही से। and readiness to sacrifice, sacrifice होता है जब हम किसी कुर्बानी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें टाइमिंग की बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी कभी हमें ट्रेनिंग के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, जैसे कि मारिया शरापोवा यूएस गई थी ट्रेनिंग के लिए, रशिया में अपनी मदर को छोड़कर। तो इस तरह से हमें सेक्रीफाइस भी देनी होती है लाइफ में कुछ पाने के लिए। दीज क्वालिटीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर वर्ल्ड अचीवमेंट्स, इनके अंदर ये खूबियाँ थी, ये क्वालिटीज़ थी, तभी ये पूरी दुनिया में अपना एक नाम बना पाए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वन। Which of these words would you use to describe Santosh Yadav? Find reasons in the text to support your choices and write a couple of paragraphs describing Santosh's character. Now we have some lists here. We have 12 words here: contented, determined, resourceful, polite, adventurous, considerate, weak-willed, fearful, pessimistic, patient, independent and प्रिसिवरिंग। अब इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो संतोष यादव को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एज हमने स्टोरी में पढ़ा था उसमें से आप याद करें। देखिए संतोष यादव वॉज डिटर्मिन्ड, उन्होंने अपना इरादा पक्का कर लिया था कि उन्हें माउंटेनियरिंग में जाना है, कॉलेज में जाना है, सीखना है, ओके। कंसिडरेट, पोलाइट, वो हमेशा जो उनके साथ चढ़ाई करते थे उनका ख्याल रखती थी, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करती थी, उनकी हेल्प करती थी। Polite and hardworking. She was a rebel who did not want to follow the traditional ways of living. हमने ये भी देखा था कि जब वो अपने गांव में थी तो उन्हें वहाँ के जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो पसंद नहीं थे, जैसे कि बाकी लड़कियाँ शलवार कमीज़ पहनती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्रेसिंग बदलनी, फिर उन्हें वहाँ नहीं पढ़ाई करनी थी, उन्होंने दिल्ली में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो रेबल मतलब कि वो अपना ही तरीका अपनाती थी, खिलाफ रहती थी कुछ रूल्स की। She developed a remarkable resistance to cold and altitude that is required for mountaineering. अब देखिए माउंटेनियरिंग है, उन्हें हिमालयस के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी थी जहाँ बर्फ़ है, स्नो है। सो उनकी बॉडी इतनी यूज टू हो गई थी, उन्होंने बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर ली थी सर्दी एंड एल्टीट्यूड मतलब जो हम ऊंचाई पे जाते हैं। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली बिकॉज ऑफ हर आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। उन्होंने अपने आप को साबित किया, एक बहुत ऊंचा मकाम पाया। देखें पूरी दुनिया में she was the youngest lady to complete the to scale Mount Everest, okay, and उसके बाद she was the only woman that scaled Mount Everest twice। पहले तो वो सबसे यंगेस्ट थी जिन्होंने स्केल किया था एज द रिकॉर्ड, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड था कि वो अकेली एक औरत थी जिन्होंने 2 बार पूरी चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की पीक तक। अब देखिए उनके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी ये भी थी कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट का इतना ख्याल रखा, वो वहाँ ऊपर से 500 किलोग्राम कूड़ा कबाड़ नीचे लाई थी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट संतोष यादव। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट डाउन बोथ दीज 2 क्वेश्चंस इन योर Beehive notebook, okay? Thank you.